This was question number 10. Question number 10 रख के था last time. इसमें you had to comment about the Vivo stability and asymptotic stability. है ना? ये क्वेश्चन किया था सबने? सही इजी क्वेश्चन. आपने सिमिलर क्वेश्चन किया था शायद क्लास में. आपने कराया था ना सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन. इसमें कैसे पता करेंगे Vivo या asymptotic stability? First, if you have to comment about the asymptotic stability, you have to look at the position of eigenvalues. तो इस क्वेश्चन में eigenvalues काफी easy है निकालना. Why? Because it's an upper triangular form, है ना? Upper triangular form में है ना, नीचे के दो zeros ही है ना. तो if you solve determinant of lambda I minus a and put that equal to 0, you will get lambdas as 1 minus 2i minus 1. like आप solve करके भी देखोगे determinant इसका निकाल के देखोगे 0, it will come out to be this. So one of the eigenvalues is in right half, है ना? So asymptotically it's not stable. Now coming to Vivo stability. How will you find Vivo stable? You have to find the poles of what? Poles of the transfer function. So first of all you should know the transfer function. So transfer function निकालो इसकी C SI minus A inverse into B. है ना? C is given as 1 0 0. Then you have to take SI minus A inverse matrix over times B. B is 0 1 2 minus 2. What's SI minus A for this matrix? S minus 1, S plus 2, S plus 1. Minus 1 0 minus 1 0 0 0. है ना? इसी का इनवर्स निकालना है. हाँ. So this will be what? 1 0 0 times 0 1 minus 2. यहाँ पे 3/3 सिस्टम है. ठीक है. So इसका जो इनवर्स निकालना है, it will be this adjoint matrix divided by the characteristic equation. Characteristic equation तो है यहाँ से भी अपनी निकाली होगी पार्ट 1 में. ये eigenvalues तो ये आएगा s plus 1 और आएगा s plus 2. एक और टर्म आएगी s minus 1 की, है ना? minus 1 ये है ना एक वैल्यूज इसकी. This matrix in solve किया ना. Now you need what? Adjoint matrix. This will be your transfer function g of s. या तो आपको स्टेप बाय स्टेप 9 एलिमेंट्स के निकालने. या तो आप एक काम कर सकते हो. You can take the advantage here. 1 0 0. So no need to evaluate second row and third row. है ना? क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होने वाले हैं. So you just need the first row of this matrix. क्योंकि खाली फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा विद 1. बाकी दो रोज की जरूरत नहीं है. या चाहो तो आप सारा ही इवैल्यूएट करो. बट यहाँ पे एडवांटेज यू जस्ट नीड 1. ठीक है. तो पहला रो इवैल्यूएट करो. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अगर कोई एडजॉइंट निकालना है ना, एडजॉइंट और जो भी टर्म होगी ना, एडजॉइंट किसका निकालना है? इसका जो भी इफ यू सॉल्व फॉर दिस पिवट, है ना, यू टेक दिस टू एंड दैट विल कम हियर, है ना. Then you take this इसके अब उसको एलिमिनेट करके and you solve for minus 1. इसको एलिमिनेट करके जो आंसर आएगा that will come here. क्योंकि this is transpose of this. जो भी हम वैल्यू निकालते हैं इसका फिर ट्रांसपोज देते हैं लास्ट में. So that will come here. Similarly, what you will take here 0, that will come here. है ना? लेकिन हमें ये एंट्रीज नहीं चाहिए. We are interested in first row, है ना? तो फर्स्ट रो की एंट्रीज कहाँ से निकलेंगी? फर्स्ट कॉलम से निकलेंगी. तो ये चीजें आप देख सकते हो व्हेन यू आर हैविंग इनफ प्रैक्टिस. तो ये और ये चाहिए बस. तो बता पहले एंट्री क्या होगी? कॉरस्पॉन्डिंग s minus 1 s plus 2 times s plus 1. yes. Now tell me about 0. s plus 1 s minus 1. अगर आप 0 के अबाउट सॉल्व करोगे you will get minus s plus 1 and the minus here that will be s plus 1.
and tell me about this 0. Eliminate this row and this column. This will be 1, है ना? तो पहला रो आ गया. अब चाहो तो ये सारा फिल कर सकते हो, बट नो नीड. तो ये यहीं पे क्लोज हो जाएगा. ये बन जाएगा आपका रो वेक्टर. Instead of a matrix, this will become a row vector, and this is row. इसका ऑपरेशन हमने कर लिया. समझ में आया? This is multiplication के बाद का रिजल्ट. Now क्या चाहिए? Do this. This term is gone due to 0, है ना? तो ये भी नहीं चाहिए. You just need what? ये 0 तो गया. You just need 1 times this and 2 times this, minus 2 times this. तो ये आ जाएगा कि s plus 1 minus 2. तो क्या आएगा? s minus 1. है ना? s plus 1 minus 2 means s minus 1. तो यहाँ पे देखो क्या होगा. This is your transfer function. यहाँ पे this gets cancelled. पोल्स और कैंसिलेशन हो गया. तो दोनों पोल्स आ गए लेफ्ट हाफ में. So it's Beaver stable. ठीक है? ये जो क्वेश्चन है, this is Beaver stable, but this is not asymptotically stable. अगर इसके सारे पोल्स नेगेटिव आ जाते then it had been also Beaver stable. Transfer function is 1 by s plus 1 into 1 by s plus 2. This is question number 10. ठीक है? So we'll come to the lab. Last time हमने we looked at the position control. Shaft का जो position होता है, we looked about position control of a DC motor. उसमें हमने दो kind of feedbacks थे ही. One was direct feedback unity के साथ, and another was using a Teco generator. तो यहाँ पे we are interested in the performance of a speed control. ठीक है? So what will be the applications first? Applications will be like rolling mills. ठीक है? और कोई एप्लीकेशन स्पीड कंट्रोल के, एलिवेटर में स्पीड कंट्रोल ही देखा जाता है. उसमें मैं लास्ट में देखा था मेनली कंसर्न अबाउट पोजीशन ऑफ एलिवेटर. वाइपर में स्पीड कंट्रोल होता है कि पोजीशन कंट्रोल होता है, कि दोनों होते हैं. आरवी हाँ, उसमें भी we have different levels of speeds. Yes. एक कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बताओ. स्पीड कंट्रोल तो आप हर जगह देखते हो. हमारे जो फैन है ना, इनमें हम स्पीड कंट्रोल करते हैं यूजिंग स्विचेस, या इन यूएवीज अनमैन्ड एयर व्हीकल्स जैसे कि क्वाडकॉप्टर्स होते हैं या बाकी चीज़ें, उनमें जो थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है दैट्स प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द मोटर. ठीक है? तो वहाँ पे वी आर इंटरेस्टेड इन स्पीड कंट्रोल. नॉट नेसेसरी a DC मोटर, एनी काइंड ऑफ मोटर, बट ये एप्लीकेशंस वेयर वी स्पीड कंट्रोल. ठीक है? तो हमने ट्रांसफर फंक्शन देखी थी लास्ट टाइम ऑफ द पोजीशन कंट्रोल. क्या थी ट्रांसफर फंक्शन? थीटा s by v of s. दिस इज एन आर्मेचर कंट्रोल DC मोटर, है ना? इसको हम ऐसे बनाते हैं सिंपली लाइक दिस. सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर. ठीक है? तो उसमें जो आप लगा रहे हो एक्साइटेशन वर्सेस द शाफ्ट पोजीशन, हमने लास्ट टाइम देखा था. इट वाज व्हाट km upon s into st plus 1. It was a type 1 system, order 0. नहीं, sorry, order 2. Second order type 1 system था ये, है ना? ये आपको याद होना चाहिए. हमने थ्योरी में भी पोजीशन भी किया एंड स्पीड भी. So this is a type 1 system and second order system. Today we are interested in the speed of the shaft, not the position. ठीक है? तो you can do one thing. You can do this. ठीक है? So this becomes your speed omega s upon ds, and this becomes a first order system. Okay? And type has changed. It's now type 0. Type 0 and first order system. So when we talk about position, we have a second order system. When we talk about speed, we have a first order system. And first order systems आपने simulate किए इस lab में काफी ज़्यादा. So you should be very comfortable handling a first order system. You know how it behaves to different gains, how it behaves to different feedbacks. So आज का जो setup होगा मैं उसकी block diagram बनाता हूँ. उसकी block diagram is much similar to what we already did. Okay, this is the block diagram of today's setup.
This is a first order system. The transfer function of the motor है voltage versus the speed. ठीक है. You have a gain, forward path gain. It varies from 0 to 10. ठीक है. And you are taking a feedback of this speed and you are amplifying it using a tachogenerator. उसका जो gain है that's kT. And here you have an option to disconnect or connect the feedback. ठीक है. And that feedback is going and you are having some error signal. Error बनेगा यहाँ पे E. And you are having two kind of inputs, reference inputs that you can give to the motor. One is a continuous reference from 0 to 2 volts, and another is a square wave. This is simulating a step response, and this is simulating a constant a ramp response if you are increasing continuously. So last जो position control था, that was a second order system. So we avoided giving a step input. क्योंकि error proportional to step input was 0 there for a type 1 system. But this is a type 0 system. It will produce some error for both the inputs. ठीक है. So this is a block diagram. आपने effect of Ka and Kt देखा था last time भी. यहाँ पे भी effect of similar setup है. Take the effect of Ka and Kt on this transfer function. और एक tachogenerator जो है, this is used to measure the speed of the shaft. Last time भी हमने लिया था effect of tachogenerator. Then we used a derivative and we incorporated as a position. लेकिन यहाँ पे एक tachogenerator है. यहाँ पे जब आपके पास मोटर होगा, उसके shaft पे एक डिस्क होगी. जो मोटर है, उसके shaft पे एक डिस्क है. ठीक है. And it's having some ridges like this. And here you are having a sensor, an optical sensor. ठीक है. जब मोटर के shaft घूमता है, then the disc also rotates. ठीक है. और यहाँ आपके पास एक ऑप्टिकल सेंसर है. दिस सेंसर्स के हाउ मेनी टाइम्स इंटरप्शंस हो जाएंगे. जब स्लॉटेड डिस्क के जब घूमेगी तो इंटरप्शंस हो जाएंगे ना इस फोटो डायोड को. देन इट विल मेजर द स्पीड ऑफ द शाफ्ट. तो आपको बताएगा कि क्या शाफ्ट की स्पीड है करंटली. सो सबसे पहले वी विल डिराइव द ट्रांसफर फंक्शन फॉर दिस होल सेटअप. ये तो नोन है, ये भी नोन हो जाएंगे. सो इट विल बी द ट्रांसफर फंक्शन फर्स्ट. If you consider the speed as the output variable and the reference as the input variable, so you have to determine the transfer function between the both. और एक और एलिमेंट है यहाँ पे जो डिस्कस नहीं हुआ, that's this omega d. This is a disturbance we can give to the motor. Disturbance speed in terms of speed can जैसे हम ब्रेक करते हैं ना मोटर में, अपने पढ़े होंगे टाइप ऑफ ब्रेकिंग, regenerative braking होती है, dynamic braking होती है. Here we will give another form of braking which is known as eddy current braking. We will apply brake to the motor, ठीक है, and this brake will be fed like a disturbance. आपने कोई set speed रखी होगी, and you are connecting the terminal, उसको feedback दे रहे हो, तो motor will command to your speed. Then you will apply some disturbance and see how feedback will behave to that disturbance. ये third experiment. So first of all, tell me the transfer function. What's the closed loop transfer function? Omega s upon VR of s. Omega s divided by VR of s. ये दो ब्लॉक सीरीज में है and you have a feedback. This is Ka, this is Kt. क्या होगा closed loop feedback में? It will be and make it a standard transfer function. Coefficient of the highest polynomial in S has to be 1. It will be Ka Km upon St plus 1 divided by 1 plus Ka Km upon St plus 1 into Kt. Yeah? This is Gs, this is Hs. Gs divided by 1 plus Gs Hs, which is here. And if you solve this, this comes Ka Km upon St plus 1 plus Ka Km Kt. This is a first order system. इसमें हम first order system कैसे लिखते हैं? Usually write first order system like this. 1 plus S star, है ना? अभी इस फॉर्म में पढ़ा था first order system. तो उसको इस फॉर्म में लिया 1 plus S star. So you can divide this Km Kt plus 1 on numerator as well as denominator. This becomes Ka Km
divided by 1 plus ka km kt, और डिनोमिनेटर में भी यही करना है. This will become what? st upon 1 plus ka km kt plus 1. ये आएगा ना ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, एंड दिस इज एज कंप्यूट टू स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. पोजीशन में यहाँ पे सेकंड ऑर्डर था, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर था. सो व्हाट यू कैन टेल मी फ्रॉम दिस ट्रांसफर फंक्शन, दिस इज योर टाउ एंड दिस इज योर गेन, है ना. तो यहाँ पे ये ट्रांसफर फंक्शन है. यू कैन टेल मी द स्टेडी स्टेट एरर फॉर अ यूनिट स्टेप. This is omega s upon VR of s. So, what is the steady state error of this transfer function if you given if VR is a unit step? Q1 plus Q. For a unit step, we define position error. Number of तीन kinds of errors होते हैं: position, velocity, acceleration. For this, if you take the position error, Kp, that's equal to what? Limit s tends to 0, gs hs. You substitute that, limit s tends to 0. What's gs? G लिखा है ना यहाँ पे, km upon st plus 1. And what's hs? That's kt. Now put limit s tends to 0. नहीं, कुछ गलत हुआ. It's not st plus 1. It's like this. S is not both sides. S is with this sign. Okay. If you put s equal to 0, this becomes ka, km, kt upon 1. Or simply ka, km, kt. So that's kp. So what's the steady state error? Steady state error for first order system. That's 1 upon 1 plus kp, isn't it? और यहाँ पे हमने assume किया है we have given a step input. ठीक है? So that is 1 upon 1 plus kp is ka, km, kt. That's your ESS. ठीक है? So you can make some observations. First observation is as Ka goes high, your steady state error has to go down. This is observation first. ठीक है? यहाँ पे जो हम करेंगे ना vary Ka, if you increase your Ka, your steady state will go down of the motor. और हमने देखा बेटा forward path में जब हम gain बढ़ाते हैं, system becomes faster and steady state error goes down. ये होता है steady state. अच्छा, डिस्टर्बेंस रिजेक्शन जो हमने वहां पे लिया है. सेकंड ऑब्जर्वेशन वी कैन मेक ऑफ दिस डिस्टर्बेंस रिजेक्शन. टेल मी द ट्रांसफर फंक्शन बिटवीन ओमेगा by ओमेगा d. Because this is also an input. ठीक है? So tell me if this is your output, and now instead of taking this as input, just take this as your input. The disturbance, take disturbance as your input. When you take that as input, you have to take these inputs as 0. Transfer function is defined only a pair of input output. तो उन दो को input output मान लो और इसको 0 मान लो. When you take this 0, ये सीधा connect हो जाएगा इसके साथ. ठीक है? With a negative sign. Negative sign का ध्यान रखना. Negative will be connected simply here. तो ये तो सीरीज में ही है. Ka km by st plus 1 है ना, and this also goes multiplying, ये भी सीरीज में हो जाएगा. तो ये सिंपली आ जाएगा क्या, 1 divided by 1 plus g, and g is overall g. Ka km kt upon st plus 1. ये जाएगा. I can write this like this. It's not like this. S is only with T. Otherwise, confusion will get both sides. It's like ST plus 1.
या if you इसको So K minus five. कहाँ पे KT minus. ये प्लस यू आर सेइंग दिस इज माइनस हियर ये फीडबैक में ये नेगेटिव है ना या दिस नेगेटिव तो यहाँ पे प्लस आएगा GS डिवाइडेड बाय 1 प्लस GS ऐसे सकते हैं ना फॉर अ नेगेटिव फीडबैक ये नेगेटिव का इवन दो दिस इज जीरो लेकिन ये गेन जो जा रहा है KT एक्चुअली माइनस KT दिस इज माइनस KT सो दैट नेगेटिव विल सर्वाइव और वो नेगेटिव आप यहाँ ले सकते हो दिस बिकम नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे इसलिए मैंने वन पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा ST को ले लो यहाँ पे दिस बिकम्स ST plus 1 you can write it like this ST plus 1 plus KA KM and KT that's your omega S upon omega ds now if you give a step disturbance भी step हो सकता है ना इसलिए input कुछ भी हो सकता है if I give a step disturbance tell me what will be the steady state value of the speed what I'm interested in is omega steady state that's equal to omega d times this transfer function st plus 1 on st plus 1 plus ka km kt now if this is a step input omega d 1 upon s तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा ठीक है now what I want is this is not steady state yet this is just omega s हमने सिर्फ ये मल्टीप्लाई किया ठीक है now I want the steady state of this value how will you find the steady state of this value which is omega ss कैसे निकालेंगे you have the transfer function that's limit s tends to what 0 s times this whole thing st plus 1 over s into st plus 1 plus ka km kt ठीक है I will write it here and this यहाँ पर लिखते हैं this s and s will go and जहाँ पे s है वो टर्म खत्म हो जाएगी so this will be 1 upon 1 plus ka km kt that's your omega ss steady state speed in presence of a step disturbance again tell me the effect of ka on the steady state speed second observation is what as your ka goes increase your this goes down है ना इससे क्या हम ले सकते हैं इंफॉर्मेशन इससे ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि जितना आप इस गेन को बढ़ाओगे दिस विल रिजेक्ट द डिस्टर्बेंसेस मोर फॉर हायर गेन्स डिस्टर्बेंस विल बी मोर रिजेक्टेड यानी कि देखो क्या हो रहा है मैं कुछ रेफरेंस ले रहा हूँ सम रेफरेंस स्पीड आई वांट माय मोटर टू रन एट सम रेफरेंस स्पीड इफ आई एम हैविंग फीडबैक माय मोटर विल रिस्पॉन्ड टू दैट स्पीड इट विल बी क्लोज टू दैट स्पीड अब अगर मैं डिस्टर्बेंस लगा रहा हूँ व्हाट विल डिस्टर्बेंस डू disturbance will just disturb the dynamics of the system या तो स्पीड को बढ़ाएगा या तो स्पीड को कम करेगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस अब दो इफेक्ट्स हैं एक तो फीडबैक का इफेक्ट है जो कि कोशिश कर रहा है कि स्पीड शुड मैच रेफरेंस स्पीड अनदर इफेक्ट इज द डिस्टर्बेंस का जो इफेक्ट आ रहा है दैट्स अगेंस्ट दैट है ना तो दो इफेक्ट्स हैं अब किसका डोमिनेंट होगा इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बेंस और इफेक्ट ऑफ योर फीडबैक दैट विल डिपेंड अपॉन दिस ka if you are having low values of ka then that disturbance will take over and you increase this ka so that disturbance will be rejected and your motor will be very close to your reference voltage that's meant by the situation ठीक है हमने अभी तक डिस्टर्बेंस का इफेक्ट नहीं देखा था ऑन एनी ट्रांसफर फंक्शन हमने सिर्फ इन एब्सेंस ऑफ अ डिस्टर्बेंस इफेक्ट्स ऑफ गेन देखे यहाँ पे इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बेंस जैसे डिक्रीज होगा क्या क्या होगा अमेरिका से लेटेस्ट नहीं है रिलेशन है ना आपके पास ka and this इनवर्सली है तो वो लो वैल्यूज ऑफ k के लिए होगा व्हेन इट्स यहाँ पे इट्स लाइक दिस ये कह रहे हो यस सो स्टेडी स्टेट वैल्यू बढ़ जाएगा उसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा
steady state value for low values of k, और इसका रिवर्स ले लो, इसको बढ़ा, ये कम होगा, है ना? Converse is also true. If you increase your k, ये जो हमने निकाला ना, basically this is change. This is change in steady state due to the presence of disturbance. So if you increase your Ka, the change in the steady state will decrease. This is actually change in steady state, not the exact steady state. क्योंकि this is a steady state already पहुंचा होगा system. क्योंकि this is a first order system, तो ये पहले ही steady state में आ जाएगा. Then you are applying some disturbance. और disturbance को apply करने के बाद there will be some change in the previous steady state. और that change we are tracking. तो वो change कम होगी if you have higher gains. ठीक है? That's another observation. Now you make some tables. तो 3 experiments हैं. This is an open loop experiment. इसमें हम feedback open रखेंगे. And we will see the effect of Ka, much similar to the first experiment. Effect of Ka on what? Speed. Speed आपके पास available होगी the whole time. Speed. This is Vt. अच्छा मैंने you can look at the block diagrams. Block diagram we mentioned ki just start and I because I have erased the block diagram. Moving back to block diagram, you can see where is Vt. Vt is the voltage at echo generator. मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था जो सेटअप होता है उसमें एक्चुअली वोल्टेज जाती है ना? यहाँ पे तो हम लिखते हैं स्पीड, बट इनसाइड द स्पीड इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज. तो सारा जो वेरिएबल है हमारी वोल्टेज है, एरर भी वोल्टेज में बनेगा, अब किसी रेफरेंस स्पीड भी वोल्टेज है और डिजायर्ड भी वोल्टेज में होगा. तो दिस विल बी योर Ka RPM, दिस विल बी योर वोल्टेज कमिंग फ्रॉम टेको जनरेटर प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द शाफ्ट. ठीक है? इसके बाद क्या है? Km. रिमेंबर व्हाट इज Km? मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ मोटर. Once again, that's Km upon S T plus 1. This is transfer function of just the speed control. This Km is that. Okay. नहीं, यहाँ पे Vm है. I don't have Km. Wait. Vm, if you look at block diagram, there's a tap in for Vm. Vm is the voltage that's going to the motor. Block diagram में जहाँ पे motor block है, the voltage that's being actually fed to the motor, that's here Vm. And you have to find this K at the last column. This K. That's Vm upon Vr. Vm आपके पास होगा the whole time. Vr हमने set किया होगा to 1 volt at the beginning. So whatever is Vm, that's Km. है ना? अच्छा, ये मैंने आपको ट्रांसफर फंक्शन दिखाई थी ना इसकी मोटर की. इसकी यूनिट्स क्या होंगे Vm के? Sorry, Km के. This is again, लेकिन I will tell you its actual value क्या है. How do you specify this Km? It's a fixed value, but doesn't mean कि इसकी units नहीं होंगे. It's a gain, it's a constant, but constant के भी units होते हैं ना. मैं Km का पूछ रहा हूँ. Km की units क्या होंगे? हाँ. नहीं. I will tell you it's Km जो है. I will write it here. Km is shaft speed upon motor voltage. ये आप इसलिए कह रहे हो because VR is 1 volt ऊपर Vm is volt. Shaft speed is proportional to Vm पर तभी VR वरना असल में प्रैक्टिकली shaft speed में यहाँ पे एक मिस्टेक है. That's why confusion क्यों हो रहा है. Last column is not Km. This is Ka. इसलिए confusion हो रहा है. This is Ka. That's equal to Vm upon Vr. And Ka, if you look at the block diagram, हाँ, this is a forward path gain. See, यहाँ पे भी आप K दे रहे हो ना, you are giving an effect of K and you are seeing the effect using experiment. क्योंकि K की transfer function क्या होगी? K की transfer function होगी Vm upon Ve. If you look at the block diagram, K is a block, और उसकी transfer function is Vm upon Ve, which is here, and Ve is the error. तो यहाँ पे आप K set करोगे and you will evaluate K. हाँ,
रेफरेंस लिया हुआ कहाँ पे लिया रेफरेंस? VM by VR यहाँ पे होना चाहिए VM by V error VM by VR and VR is 1. error होना चाहिए सर error signal अच्छा, from the block diagram. जी ये ओपन लूप है ना मतलब This is open loop. अच्छा ये ओपन This is an open loop experiment. Come in, and open loop. This is an open loop experiment. We have pointed right. It should be error. But for open loop, you're having VR, which is 1. That's why whatever is VM, that comes to be KA. लेकिन यहाँ पर ये नहीं देखते हैं कि जो हम K प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम evaluate कर रहे हैं using the transfer function. So this should match very close. ठीक है? इसमें open loop ले रहे हैं and you are seeing VT, VM and KA. अच्छा, मैंने यहाँ पे KM लिखा था, this K. Its units is shaft speed per motor voltage. So that becomes क्या units आएंगे फिर इसके? It's radian per second upon volts. There's another constant here, that's KT. KT is the tacho generator gain, है ना? उसकी units क्या होंगे? That's VT upon omega s. See in the block diagram, VT upon the speed. तो उसकी units क्या होंगे? Volts upon radian and we can write it here. ठीक है? ये दो चीजें हम लिख के रखते हैं for our convenience. Because you have to evaluate these constants. तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप इफेक्ट ऑफ K देखोगे on these parameters, then once you fill this table, you have to plot two graphs from first table. You have to basically get these two. तो क्या क्या प्लॉट करेंगे? You plot speed versus motor voltage. You will plot speed versus motor voltage versus Vm, and second plot you will take to get Kt. यहाँ से आपको Vkm मिलेगा. Just check the ratio. What's Kt? Kt के लिए आपको क्या प्लॉट करना पड़ेगा? Vt versus omega s. Vt versus the speed. This is Ukt. है ना? जब ये टेबल फिल हो जाएगा, m आपके पास होगा and Vm भी आपके पास होगा. So plot these two columns. These two columns you will get Km. But remember the units has to be radian per second per volts. You are having RPM here. ठीक है, आपको चाहिए radian per second. So that conversion 2 pi by 60 वाला लेना है. And the second is Vt versus n. Vt भी आपके पास है, n भी आपके पास है. So plot these two columns, you will get Kt. And Kt unit should be volt second per radian. ठीक है? So that's your first experiment. Fill the values and plot these two and get those two. ठीक है? Second experiment we will close the loop now. यहाँ से सारा एक्सपेरिमेंट क्लोज लूप में होगा. तो यहाँ पे you have to again vary Ka, forward path gain, and again you have to check the speed. Now you have to check the Vt coming from the tacho generator. And यहाँ पे दो kind of errors हैं. One error is the experimental error, जो अभी आप कह रहे थे. If you look at the block diagram, that experimental error will be VR minus Vt, isn't it? हाँ, VR minus Vt आप directly measure करोगे. And you have one more error जो भी आपने निकाला था, theoretical error दिया था 1/1 plus Ka, Km, Kt. And from the previous experiment, you know Km and Kt from this experiment. And K तो variable है, so you will get a range of errors theoretically and range of errors practically, and you will see whether they match or not. ठीक है? This is experiment number 2. ये close loop में होगा. इसमें भी आपको VR 1 volts लेना है, इसमें भी VR 1 volts लेना है. This is open loop, this is closed loop. Now coming to last, this is the disturbance rejection. This is a combination of open and closed. इसमें क्या करना है? First see open loop. Open loop में आपको different breaks apply करनी है to motor. You will set some reference speed, 1200 RPM से start करोगे. Then you will apply brake settings. These are different levels of brake settings. जितना नंबर बढ़ रहा है उतनी ब्रेक बढ़ रही है, ब्रेक का इफेक्ट बढ़ रहा है. So for open loop you will start with 1200, isn't it? You will start with 1200 RPM. Then when you apply brake, this RPM will go down, isn't it? जो shaft की speed होगी that will go down.
Similarly for closed loop, इसमें भी आप start करोगे 1200, but for closed loop you'll be having different effects of KA. यहाँ पे तीनों closed loop है, but the difference is KA is 5, 10 and 50. So ये टेबल आपको fill करना है for different braking effects, and you see कि what is the effect of open versus close, and what is the difference among the close for varying KAs. यहाँ पे क्या लग रहा है आपको क्या होगा? जितना भी हमने observations बनाई थी यहाँ पे. Before doing the experiment, you should be able to tell me the trend. ब्रेक इफेक्ट कम होगा सर। Tell me for open loop क्या होगा? Open loop में जब हम आगे जाएंगे क्या होगा? This 1200. डिक्रीज। This will fall. It will fall from 1200 to some final value at fourth level. Versus closed loop में क्या होगा? For first value होगा K5. थोड़ा कम कंट्रोल। हाँ, इसमें कम drop होगा. Why? Because you are having an effect of closed loop. Closed loop will balance your disturbance effect. तो इसमें इतना ड्रॉप नहीं होगा जितना ओपन में होगा. अब बताओ वेरिएशन इन क्लोज लूप्स. क्लोज लूप में भी वेरिएशन है. सबसे कम वेरिएशन विल बी KA. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस. सबसे कम इफेक्ट होगा KA में. सो सबसे कम ड्रॉप आएगा इन द लास्ट कॉलम. देन दिस ड्रॉप विल बी मोर प्रोनाउंस्ड इन द अपवर्ड कॉलम्स, अपवर्ड रोज. ठीक है, तो तीन एक्सपेरिमेंट समझ में आए. सो विल कम टू एक्सपेरिमेंट सिमिलर टू द पोजीशन कंट्रोल. इफ यू सी वी आर हैविंग ए ब्लॉक डायग्राम जो हमने बनाई थी ना बोर्ड पे. ये ब्लॉक डायग्राम है. टू सोर्सेज, वन इज अ स्टेप, ये स्विच, अनदर इज अ वेरिएबल VR, ये आपके पास, एंड दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पीड आप ले रहे हो दिस विल बी एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड वोल्टेज, और वो वोल्टेज अब यहाँ पे दिख सकते हो. वो रेड वायर लिया, यू विल कनेक्ट दिस VR टू योर DVM. ठीक है, एंड यू कैन सी हाउ मच वोल्टेज एक्चुअली आई एम फीडिंग. सो दिस गोज फ्रॉम 0 to 2 volts या 9.94. ठीक है, एंड दिस इज अ ये बेसिकली एक इफ यू सी इसको ऑन करोगे व्हाट आर यू सीइंग. आप देख रहे हैं आप एक प्लस माइनस से स्विच हो रहा है. व्हाई? बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर वेव. तो अगर आप मल्टीमीटर लेके कोई स्क्वायर वेव मेजर करोगे यू विल सी लाइक दिस. अगर आप कोई उसका पीक टू पीक देख रहे हो. ठीक है, तो दिस इज स्विचिंग. तो यू कैन फीड द मोटर आइदर अ कांस्टेंट वोल्टेज और आइदर पल्सेटिंग वोल्टेज. पल्सेटिंग वोल्टेज जब देंगे मोटर को क्या होगा? फॉर पॉजिटिव हाफ इट विल मूव इन वन डायरेक्शन, फॉर नेगेटिव हाफ इट विल मूव अनदर डायरेक्शन. लेकिन अगर ये फास्ट स्विच हो रहा है तो मोटर में कुछ इनर्शिया है. इट विल नॉट मूव वेरी फास्ट एज कंपेरेबल टू दिस फ्रीक्वेंसी. सो जिस डायरेक्शन में इनिशियली पुश आया था इट विल कंटिन्यू टू मूव इन दैट डायरेक्शन. है, तो ये हो गया सोर्सेज दो. अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड दिस इज योर फॉरवर्ड पाथ गेन this, and you can control using a potentiometer. यहाँ पे आपको ये this is your KA, and this goes from 0 to 100 actually. Value of gain मैं कह रहा हूँ. This is a 10 turn potentiometer. यानी कि जब इसको आप घुमाओगे, when you see the number 1, this means 10. ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि how do you interpret this gain. अब ये 0 है. जब full continuous एक cycle होगा, you will see a number 1. That means 10. इसी तरह when you see 10 here, that means 100 gain, or that's the maximum value, 100. ठीक है. Moving on, this voltage is being fed to the driver circuit, which makes the voltage for the motor. ये आपके पास मोटर का ब्लॉक डायग्राम है which is connected externally. वापस आते वक्त this is a tacho generator feedback coming from the motor, और यहाँ पे फीडबैक के टर्मिनल है. तो ब्लॉक डायग्राम इतनी ही है. यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा हियर इज RPM काउंटर जिस पे आप RPM देखोगे. नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सटर्नल यूनिट. मोटर इज मच सिमिलर टू द लास्ट वन. मोटर इज वेरी मच सिमिलर टू लास्ट वन. हियर यू आर हैविंग अ मोटर, ये वाला. ठीक है, मोटर के आगे एक डिस्क कनेक्टेड है, ये बड़ी सी डिस्क जिसमें स्लॉट्स हैं, और यहाँ पर आपका एक ऑप्टोकपलर है, दिस ब्लैक ब्राउन कलर डिस्क. तो जब ये डिस्क घूमती हैं तो दिस काउंट्स हाउ मेनी कट्स हो जाते हैं ऑप्टोकपलर में. बेसिकली होता क्या है, ऑप्टोकपलर सेंस ए रे, वो रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, और जब उस रे को कट हो जाता है ना यूजिंग दिस स्लॉट, इट काउंट्स 1. सर ऊपर जो रजिस्टर ये, हाँ दिस वन ये वाला. तो ये जो जब ये शाफ्ट घूमता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्क भी घूमती है, तो दिस गेट्स इंटरप्टेड, और दिस इज फेड टू अ फ्रीक्वेंसी काउंटर जो कि काउंट करता है कि कितने कट्स हो गए पर साइकिल, एंड देन हाउ मेनी साइकिल्स आर देयर. ठीक है, दिस इज हाउ स्पीड इज बीइंग मेजर्ड हियर.
देयर आर कपल ऑफ वेज टू मेजर स्पीड, दिस इज वन ऑफ द वे। अच्छा, मैंने कहा था डिस्टर्बेंस इज इनपुट, ये दो तो है ही इनपुट्स, यू हैव अ थर्ड इनपुट व्हिच इज अ डिस्टर्बेंस, वो आप देख सकते हो यहाँ से ऑन द फ्रंट साइड यू आर हैविंग दिस ब्रेक, ठीक है, इसमें मैंने कहा था स्टेप्स ऑफ ब्रेक्स हैं, है ना, दिस इज 0 to 5। अब कैसे ब्रेक लग रही है यहाँ पे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स टू अप्लाई ब्रेक टू अ मोटर। क्या क्या टाइप्स हैं, आप एक मोटर को कैसे ब्रेक दे सकते हो, एनी मोटर, voltage, resistance, or हाँ, maybe you can or flux. simply decrease the voltage, but that's not फ्लक्स कंट्रोल usually adopted. Another is कि मोटर को हम एज अ जनरेटर एक्ट करवाते हैं, जब एज अ जनरेटर एक्ट करेगा तो पावर लॉस हो जाएगा और वो ब्रेक लग जाएगी। और क्या मेथड्स हैं, और रेजिस्टिव ब्रेक्स होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यू आर हैविंग पोल पेयर, ये जो है ना, ये सामने, मैं सामने दिखाता हूँ, ये जो नॉब है, इस नॉब से क्या हो रहा है, इफ यू सी अ पोल पेयर इज मूविंग, ठीक है, ये जो है ना एल्युमिनियम के दो, दिस नॉट एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इज द डिस्क, दिस इज अ पीस ऑफ मेटल और इसके अंदर एक मैग्नेट है। सो व्हेन दिस यू मूव दिस, ये एनक्लोजेस दिस एल्युमिनियम डिस्क। तो जब ये मोटर घूम रहा होता है, एक बार उसको घुमाते हैं, सी द मोटर इज रनिंग एंड सो इज दिस डिस्क रनिंग, है ना, जो डिस्क है, ये डिस्क घूम रही है, एंड हाउ मच द स्पीड यू कैन सी हियर, ठीक है। अब मैं मान लो कोई ब्रेक नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, तो दिस मोटर इज रनिंग एट एंड नो लोड, यहाँ पे लोड का मीनिंग इज द डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब मैं इस डिस्टर्बेंस को बढ़ाऊंगा, तो क्या हो रहा है, ये जो पोल पेयर्स है मैग्नेट, दिस कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस डिस्क एंड दिस इंड्यूसेस एन एडी करंट इन दिस। तो जब एडी करंट इंड्यूस हो जाता है, पावर लॉस हो जाता है, जिससे स्पीड ड्रॉप हो जाती है। अब कितना फॉरवर्ड ले रहे हो अंदर, दैट्स द सेटिंग ऑफ योर ब्रेक्स, दिस इज द मैक्सिमम सेटिंग व्हेन इट्स परपेंडिकुलर टू द डिस्क, यहाँ पे मैक्सिमम ब्रेक लगेगी, एंड वैरिंग अपॉन कितना डेप्थ जा रहा है मैग्नेट अंदर, प्रोपोर्शनल टू दैट इज द ब्रेकिंग, ठीक है। अब आपको लेना है फर्स्ट टेबल, फर्स्ट टेबल देखो क्या वैरी करना है। अच्छा, सेटिंग्स क्या रखनी है, वी आर, यू हैव टू टेक एज 1 वोल्ट, पहले यू हैव टू गेट कंफर्टेबल विद वोल्टेज, वीएस, वीआर, वीटी यहाँ पे मेंशन्ड है, और वीएम, वीएम भी चाहिए ना आपको, वीएम इज हियर, और दिस इज वीटी, दिस इज वीटी, ठीक है। तो जो भी आपको वोल्टेज इनमें से मेजर करनी होगी, यू हैव टू कनेक्ट दैट टू वी। जैसे आपको मानो वी आर मेजर करना है, तो वी आर को कनेक्ट करना है टू वी, दैट विल टेल यू द वोल्टेज ऑफ वी आर। सिमिलरली वी टी मेजर करना है तो कनेक्ट इट हियर, ठीक है। अभी आपको वी आर सेट करना है टू 1, तो इसको हम सेट करेंगे टू 1, ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। अब आपको वैरी करना है के ए, राइट नाउ के ए इज 0 एंड विल नॉट यूज 0, we will use 3, 4, 5, 6 ऐसे कर करके you will just make the plots. तो mention first value of Ka, let's say 3, ठीक है। तो मैंने 0, 3 लगा दिया, that means gain of 3, ठीक है। तो क्या क्या चाहिए आपको, you need RPM, mention RPM, 3 कैसे लेते हैं? आप आगे आगे आ जाओ, देखो इसको बस डिस्टर्ब नहीं करना, दिस इज 0, ठीक है, यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा है 0, और इस डिस्क के ऊपर भी नंबर्स हैं, ठीक है। तो अभी 0 इज मैच टू दिस 0, सो दैट मीन्स गेन इज 0। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ 10, दिस मीन्स गेन 1, गेन 1, दिस मीन्स गेन 2, गेन 3, गेन 4। जब ये आपको फुल कंप्लीट साइकिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, बट एक्चुअली 1 and 0 that is 10। या इसको आप ऐसे देख सकते हो, दिस इज 1's place and this is units place, 0, 4 means 4 gain। इसी तरह अगर मैं randomly बताऊं, this is how much gain, 2.2 2.2 or 22 gain, ऐसे आप देखोगे, ठीक है। So I'm giving the first value of 3, mention 3, speed देखो कितनी है, और जब आप गेन चेंज करोगे अब्रप्टली मोटर उस स्पीड पर नहीं आएगा, इट विल टेक सम टाइम टू रीच इट्स स्पीड, एंड मैं इंश्योर कि कोई ब्रेकिंग नहीं है, इसमें कोई ब्रेकिंग नहीं है, एंड नो फीडबैक फॉर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। व्हाट्स द स्पीड, कम हो रही है, लेट इट फिक्स एट सम वैल्यू और दैट्स योर स्पीड। हमने वी आर रखा है 1, नो फीडबैक एंड ए गेन ऑफ 3,
and no braking. नहीं सर अप डाउन कर रहा है 1160 to 1180. One more thing. We will not give two inputs at a time. We will switch off this square wave. क्योंकि हम अभी क्या दे रहे हैं? We are switching off this. We are just giving this 1 volt, है ना? In terms of there will be some speed. क्योंकि यहाँ पे तो हम 1 volt दे रहे हैं. Actually, we are feeding some reference speed. So इसको हम off कर रहे हैं. Because this will make the motor to oscillate. This will make the motor to continuously run in one direction. So इसको off करके हम experiment start कर रहे हैं. So ये आपकी base speed है 1082. इससे भी कम हो. ये जो लास्ट के डिजिट्स है इनको आप इग्नोर करो. अब इसमें वेरिएशन आएगी. मेनली इट्स अबाउट दीज 3. लास्ट का प्लेस आप यू कैन इग्नोर. 1078. एक आप में से जाओ एंड वहाँ पे भी मेंशन करो ना Last ऑन द टेबल ताकि लास्ट सबके लिए. लास्ट में नहीं लगे. ठीक है, रहने दो. वी कैन मेक इट ऑन लास्ट. ठीक है. सो मेंशन 1078 और 79. 1079. और क्या चाहिए? VT. तो ये कनेक्टेड ही है. कनेक्टेड टू हेयर, है ना? ये वाला टर्मिनल आपको फिक्स्ड ही है. कनेक्ट टू द DVM. बस ये कहाँ पे मेजर करना है वो कनेक्ट करना है. 0.83. और क्या चाहिए? VM. दिस इज योर VM. 2.9. 2.92. is 2.92. एंड K इज व्हाट इज VM? ठीक है. 2.90. 2.9. तो टेक नेक्स्ट. आगे सारे कॉलम्स. Yes sir. टेक नेक्स्ट गेन. लेट्स से 4. पहले स्पीड. फर्स्ट इंस्टेंट पे स्पीड मेजर किया करो. स्पीड इज व्हाट? 1590. वेट बिकॉज ये एक्सेलरेट हो रहा है ना. सो काउंटर ये काउंट्स कर रहा है कि कितने काउंट्स हैं. I also have some nominal values के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं. KA4 है. You can mention 16 है आपका RPM. Your you know आपको क्या चाहिए? और VT 1.25. You need VM 3.91. ठीक है. बढ़ते जाओ. KA5. Take this first. Take VM 4.87. Take VT 1.66. Speed has increased 2144. 2144. Okay. 6. We are basically increasing the voltage slowly. VT is 2.06. VM is 5.9 and speed is 2700. 2700 मेंशन करो. ठीक है. KA7. For KA7 your VM is 6.86. Your VT is 2.47 and your speed is 3200. 3200. Moving forward, KA8. Your VT is 2.8. Your VM is 7.84, and your speed is 3730. 3730. KA9. VM mentioned 8.82. VM is 8.82. VT is 2.7 and speed कितनी है? 4235. KA10. VT is 2.56. 2.56. VM is 9.75 and speed is 4730.
4710 4710. Then gain 11. For gain 11, your VM is 9.75. VM is 9.75. VT is 2.55 and speed is 4752. Moving on, it's 12. KA 12. VT mentioned 2.56 or 2.55. हाँ, अब ले लो readings, then we will interpret them. VM 9.76 and speed is 4732. 30. Not 30, 13, KA 13. इस पे स्पीड नहीं, पहले VM ले लो. VM 9.76, VT 2.55 and speed 4735. 14, VT 2.55 fixed, VM 9.76 and 47 speed is 4736. हाँ, ले लो 4736. 15, VM is 9.76. VT तो वही होगा 2.55 और स्पीड भी ऑलमोस्ट फिक्स हो गई 4743. Hmm? 16 लास्ट 16. VT सेम ही है, एक्सपेक्टेड ही है. VM भी सेम ही है 9.77 एंड स्पीड इज 4734. अब हम गेन काम करते हैं, क्योंकि इसके बाद आप कितना भी गेन बढ़ाओ इससे ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ेगी. ठीक है, बिकॉज वाई, क्यों, वाई आर सीइंग कि गेन बढ़ाने में स्पीड नहीं बढ़ रही है. वो तो ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, इट हैज़ टू रीच सम स्टेडी स्टेट. तो आप यू आर सेइंग दैट हैज़ ऑलरेडी रीच स्टेडी स्टेट. तो हमारे पास मैंने कहा था वी हैव अ वेरिएशन ऑफ 1 to 100 और हम गए जस्ट 15 16. तब रेंज ऑफ वैल्यूज हैं जो हम दे सकते हैं, बट फॉर ऑल दोज वैल्यूज इससे ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ेगी बिकॉज मोटर है सैचुरेटेड, क्योंकि हम एक्साइट कर रहे हैं ना आर्मेचर को. तो देयर विल बी अ वैल्यू जहाँ पे इससे ज़्यादा एक्साइटेशन नहीं पॉसिबल है. सो दैट्स व्हाई योर. अब इसका ज़रा प्लॉट डालो, इसको मैं वापस कम कर रहा हूँ. जस्ट ड्रा विद हैंड प्लॉट करो, एक रफ प्लॉट दो. प्लॉट स्पीड वर्सेस VM. A rough plot quickly. Speed versus VM. X axis में VM होगा, Y axis में speed होगी. Quickly. अब दूसरा प्लॉट डालो आप speed versus VT. Speed versus VT. X एक्सिस में स्पीड होगी इस बार. X एक्सिस में स्पीड डालो और Y एक्सिस में VT. आपको एक राइजिंग ग्राफ दिखेगा विद सम सैचुरेशन ऑन बोथ द ग्राफ्स. A rising graph with saturation. तो आपके पास जो दोनों ग्राफ्स हैं उनमें एक लीनियर रीजन है ना, यू आर हैविंग अ लीनियर रीजन. उस रीजन में हम वी आर इंटरेस्टेड टू ऑपरेट द मोटर, क्योंकि हमारी सारी लीनियर थ्योरीज वैलिड ऑन दैट लीनियर रीजन. जब सैचुरेशन आ जाता है तो लीनियर कंट्रोल खत्म हो जाता है. देन वी टॉक अबाउट नॉन लीनियर कंट्रोल. वी फोकस ऑन लीनियर पार्ट. तो लीनियर पार्ट में यू हैव टू इवैल्यूएट Km एंड Kt, दो कांस्टेंट्स हैं. इवैल्यूएट Km. Km इज फर्स्ट ग्राफ में से Km निकलेगा, दैट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ. शाफ्ट स्पीड डिवाइडेड मोटर वोल्टेज. तो स्लोप निकालो. Find out the slope. Take any two readings in the linear region. 57 point radians per second. 57. हाँ ठीक है, 57 क्लोज. 57 ठीक है. 57 रेडियन पर सेकंड अगर आए कितना आना चाहिए? अराउंड 60 और 70. आप देखो आपको कितना आ रहा है. 3.09.
मेन 84 84 भी आ सकता है। इट डिपेंड्स कि आपने कौन सी रीडिंग्स ली है लीनियर रीजन में। तो पहली अगर पहले हाँ आपने पहला लिया तो कितना है 53, आपने कितना लिया मैंने आपने सर कौन- लास्ट वाली ली और पहली वाली लीनियर रीजन के एंड पे आपको कितना आ रहा है? नहीं मैंने लीनियर रीजन नहीं लिया। लीनियर रीजन में इवैल्यूएट करना है, अदरवाइज ये टोटली डिफरेंट है। आपको कितना आ रहा है? 45 57 आपका 53 सेम ठीक है 57 53 क्लोज है। सेकंड कांस्टेंट देखो KT volts divided by radian per second, change in volts divided by change in radian per second। लीनियर रीजन पे फोकस करना है। तो चेंज इन वोल्ट्स न्यूमरेटर में 8.3.14 ठीक है। दैट्स अ km and KT दिस इज एक्सपेरिमेंटली। नाउ कमिंग टू एक्सपेरिमेंट 2। एक्सपेरिमेंट 2 में क्या करना है? वी आर फीडबैक को क्लोज करेंगे, ब्रेक नहीं देनी है, नो ब्रेकिंग, इस एक्सपेरिमेंट में कोई ब्रेकिंग नहीं है। फीडबैक क्लोज किए, वी आर इज ऑलरेडी सेट टू 1 जो कि यहाँ पे दिख रहा है, और यू हैव टू वेरी K। mention first K5। आपको क्या क्या चाहिए? अब यू नीड स्पीड, यू नीड VT और 2 काइंड्स ऑफ एरर्स को कैलकुलेटर एक रखो हाथ में कोई, क्योंकि जो लास्ट कॉलम है कैलकुलेटर ले लो। फॉर लास्ट कॉलम 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस है ना वो KM KT आपने ले लिया पिछले एक्सपेरिमेंट से, वो तो फिक्स रहेगा। द ओनली वेरिएबल इज KA। इसमें फॉर्मूला कहाँ है? वो कहाँ था आपने ये? तो फॉर्मूला में KM KT इज फिक्स्ड, बस K बार बार चेंज होगा। तो फॉर्मूला में सिर्फ आप K को रिप्लेस करोगे, ठीक है। पहला रो फिल करो K5 स्पीड 0.665 नहीं 0 पॉइंट नहीं 0.665 665 RPM है ये। दिस कॉलम इज इन RPM 665 RPM। यू नीड VT हम यहाँ से मेजर करेंगे 0.52 and you need the 2 errors। जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एरर है दैट्स फ्रॉम द ब्लॉक डायग्राम VR माइनस VT। VR तो हमारा 1 है फॉर एवरी एक्सपेरिमेंट। 0.48 हाँ 1 माइनस 0.5 नाउ इवैल्यूएट स्टेडी स्टेट एरर यूजिंग थ्योरेटिक्स। 0.0072 आर यू श्योर इतना कम होगा? 53.1 देखो आपके एक्सपेरिमेंट के थ्रू कितना आ रहा है? एक्सपेरिमेंट के थ्रू आ रहा है पॉइंट कितना 0.48। तो थ्योरेटिकली भी कंपेरेबल ही होना चाहिए। थ्योरी और एक्सपेरिमेंट की डिफरेंस 1 डिवाइडेड फिर से करो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KA 5 लिया KM क्या आया था 53.1। अगर इससे ज्यादा लेंगे तो वो तो कम ही आएगा वो। इन दोनों का KM सेम है। आपका कितना KM आया था? 53। आपका कितना KM आया था? KM 59 ठीक है 53 57। सर वो आपका कितना KM था? सर मैंने किया नहीं। तो 53 ले लो। आ रहा है ना ज्यादा वेरिएशन आ रहा है। तो KT सही ले रहे हो? KT can do KT अभी कैलकुलेट किया KT कैलकुलेट नहीं किया आपने, कितना लिया? 8 into 10 power minus 3 माइनस पुराना KT is fixed for the experiment। 8 into 10 to the minus अच्छा ये VT हाँ ये कंफ्यूजन 8 into 10 to the power minus 3 KT and KT हाँ KT and KM are fixed। 0.45 This should be comparable to experiments। Close आ रहा है? 0.32 Now move next again। हम लेंगे 10, अभी 5 है, let's move to 10। 10 is when you see 1 mention the VT is equal to 0 VT 0.73 mention speed 943 calculate the error। बस फॉर्मूला में भी KA चेंज होगा, बाकी सारे सेम है। 0.27 0.2 0.2 मूविंग ऑन। अब बस KA चेंज करते जाओ उसमें। नाउ मूविंग ऑन 15 लेंगे 15 पे मेंशन VT 0.81 calculate the experimental error 1 minus 0.81 0.19 and mention calculate the experiment theoretical error 0.14 0.14 or 16 हाँ ठीक है। 104 मूविंग ऑन 20 gain 20 gain 20 पे VT ले लो 0.86 VT
0.86. Calculate error 1 minus 0.86 0.14. and calculate the 0.11. 110, 1105 speed. and speed. Speed 1105. 25 gain 25. Gain 25 पे VT is 0.89. Error is 1 minus 0.89. 0.11. Theoretical error कितना है? सर 0.1 0.1 और speed is 1141. Speed is 1141. Last reading ले लो. We will take much higher gain. Let's take 50. This is 50 when you see 5 and 0. 5 on this disk and 0 on the lower disk. That makes it 50. Gain 50 पे 0.95. VT is 0.95. Error 0.05. 0.04 and theoretical error 0.045 0.045 and the speed is 1220. तो आपने देखा जितना हम गेन बढ़ा रहे हैं error is going down. That was the first observation. Now coming to last table. And the theoretical जो हमने theoretically derive किया error और जो practically measure किया error that's also comparable. है ना? अब कुछ accuracies होती हैं due to saturation और non-linearity. Coming to last table. Last table में क्या settings लेनी है? We have to take feedback. open loop हाँ पहले ओपन लूप देख लेते हैं. ओपन लूप डिस्कनेक्ट कर लेते हैं. गेन 50 था. दैट्स व्हाई इट्स मूविंग वेरी फास्ट. गेन को कम कर लेते हैं. ठीक है. क्या सेटिंग्स रखनी है? ओपन लूप रखना है और क्या करना है? Open loop. जस्ट ओपन लूप. Yes, है ना? अब आपको इफेक्ट ऑफ ब्रेकिंग लेना है. Speed सर फिक्स रखना हाँ. 1200 ओमेगा 1200. You have to देखो फेयर कंपैरिजन बनाने के लिए एवरी रीडिंग हैज टू स्टार्ट फ्रॉम 1200. Yes, क्योंकि हमको देखना है कि कितना कम हो जाएगा. तो सब स्टार्ट करेंगे हम 1200 से. तो जो VR है वी विल इंजेक्ट द VR. इतना VR हम फीड करेंगे कि स्पीड रीच टू 1200. यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा. ठीक है. अभी स्पीड इज 11. I will tell you. K कैसे फॉर्म एडजस्ट I will tell you. पहले स्पीड को आने दो 1200 पे. KA you will set as 5. सर ब्रेक कैसे लगा रहा है लेकिन ना इसमें करंट है ना शैफ्ट में करंट I है. will tell you. एक second. Magnet is in this region. जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है डिस्टर्बेंस रिजेक्शन इसमें विल स्टार्ट विद 1200. ये थोड़ी ज़्यादा स्पीड है इसमें. यू डोंट हैव टू सी के इसमें. या जस्ट 1200 से स्टार्ट करना है तो इसको कम कर लेते हैं ताकि 1200 से ही शुरू हो जाए. कम हो गया है ना. और जितना मैं चेंज कर रहा हूँ अब्रप्टली चेंज नहीं हो रहा है. इट्स टेकिंग सम टाइम. ये जीरो करेंगे. ओके. तो इसको बढ़ाएंगे. 1200 से शुरू करना है. ये अप टू 3 और 4 और 5 ले लेते हैं और 1200 की सेटिंग से इसको स्टार्ट करते हैं. लेट्स वेट फॉर स्पीड टू सेटल. और कम करना है क्योंकि टू स्टार्ट फ्रॉम 1200 है ना. जो सेटिंग्स हम रखेंगे दैट विल बी फिक्स्ड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. 1600, 1500, 1300 एंड 1200. ठीक है. सो 1200 से हम शुरू करेंगे. तो पहला रो आप फिल करो. फॉर जीरो ब्रेकिंग मीन जो करंटली है दिस इज जीरो ब्रेकिंग. कम हो गई. ये इनसिग्निफिकेंट है दिस वैल्यू. ठीक है. यू आर सजेस्टिंग कि आप इसी वैल्यू पे स्टार्ट करेंगे तो फिर सारे एक्सपेरिमेंट इसी. दिस इज क्लोज टू 1200. तो आप 0 पे भी 1200 ले लो, 1 पे भी 1200 ले लो. सिग्निफिकेंट चेंज आएगी व्हेन यू हैव मोर ब्रेकिंग. क्योंकि अभी अगर आप देखोगे प्रैक्टिकली ये डिस्क अभी इट्स वेरी फार फ्रॉम दिस मैग्नेट. तो यू विल सी द इफेक्ट व्हेन वी हैव 2-3 ब्रेकिंग. ठीक है. तो वहां पे सिग्निफिकेंट चेंज आएगा. मैं मेंशन है 2. आई एम चेंजिंग इट टू 2 and speed has to drop. Speed will drop. 1070. Mention 1070. Now third breaking. Step 3. Wait for the speed.
786 मेंशन 7 8 5 ब्रेक 4 और अभी इट्स एन ओपन लूप आपको माइंड में रखना है इट्स एन ओपन लूप अभी इफेक्ट ऑफ फीडबैक नहीं आ रहा है मेंशन 670 एंड ब्रेक 5 फाइनल ब्रेक वेट फॉर द फाइनल ब्रेक 620 ठीक है आगे पहला नाउ वी विल मूव टू सेकंड रो इज नाउ क्लोज लूप K equal to 5. हाँ अब हमें अब आएगा इफेक्ट ऑफ के यहाँ पे के कितना लेना है 5. वो ऑलरेडी सेट है ही 5 पे वी आर ऑलरेडी सेट है 1 पे एंड ब्रेक इज ऑल्सो ऑन 0 बट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1200 है ना अब ये होता है जब हम क्लोज लूप करते हैं तो गेन कम हो जाता है अब्रप्टली इन द सिस्टम तो वी हैव टू इंक्रीज दिस ताकि फेयर कंपैरिजन हो जाए और 1200 से हम शुरू करें तो इसको आप 1200 लोगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे ताकि ये भी अराउंड सेम वैल्यू से स्टार्ट हो जिस वैल्यू से हमने ओपन लूप में लिया था ठीक है क्लोज टू 1200 आ गया पहला कॉलम तो आप हर एक एंट्री में 1200 ले लो तो सेकंड कॉलम अभी हम इसको पहले आप सेटल होने दें आगे क्लोज टू 1200 अब जब ये ऑसिलेट हो जाएगा ना वापस नीचे आना लगेगा तो वहां पे सेटल हो गया थोड़ा अगर आप और बड़ा हो गया इट विल गो अप लेकिन एक जगह पे रुक कर फिर नीचे आएगा सो 1200 है अब हम आएंगे ऑन फर्स्ट ब्रेकिंग पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा राउंड अबाउट सेम 1200 सी द इफेक्ट ऑन 2 1189 3 setting 3 wait for it 1060 Small change. 4 980 mention 980 एंड फाइनल ब्रेक 5 एक और इसमें है 5 सेटिंग्स हैं 0 1 2 3 4 एंड 5 6 सेटिंग्स हैं तो 5th ब्रेकिंग पे 950 mention 950 that was KA5 now we have to give what K equal to 10. K equal to 10 this K equal to 10 इसको भी स्टार्ट करना है एट 1200 तो यहाँ पे सोर्स कम करेंगे क्योंकि गेन ज़्यादा है दिस इज वेरी क्लोज टू 1200 तो 1 पे भी सेम ही आएगा 1200 2 पे ले लो 2 पे इट्स 1185 3 पे ले लो 3 पे इट्स वेट इट्स 1115 4 पे ले लो वेट 4 पे इट्स 1047 and 5th maximum breaking it's 1030 आपको लग रहा है इफेक्ट ऑफ के फर्स्ट इफेक्ट ऑफ फीडबैक देन इफेक्ट ऑफ के चेंज कम हो रही है तो फीडबैक इज फाइटिंग ऑन द डिस्टर्बेंस अब लास्ट का जो रो है दैट्स के 50 वेरी हाई गेन 50 is here you have to start from 1200 तो फिर से इसको ड्रॉप करेंगे सोर्स को जब गेन बढ़ा रहा हूँ मैं तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी हाई वैल्यू दैट्स व्हाई आई हैव टू डिक्रीज द सोर्स नाउ ताकि 1200 से ही स्पीड पहले से ही स्टेडी स्टेट में आए 1200 दिस इज क्लोज टू 1200
थोड़ा बढ़ाते हैं, हाँ। तो 1 अगेन एक्सपेक्टेड सेम ही होगा। इफेक्ट ऑफ ब्रेकिंग 2 ले लो, 1197 3 ले लो। सी आई एम अप्लाइंग ब्रेक बट मोटर में कोई डिस्टर्बेंस सारा रिजेक्ट हो रहा है। 1180 4 1170 एंड फिफ्थ मैक्सिमम ब्रेकिंग 1156। तो इसमें आप एक काम करोगे, यू कैन मेंशन परसेंटेज चेंज फॉर ईच रीडिंग कि कितना परसेंटेज ड्रॉप हो रहा है। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय फाइनल वैल्यू। तो आपको पता चलेगा परसेंटेज में कितना डिप आ रहा है, जितना हम गेन बढ़ाएंगे उतना परसेंटेज कम हो जाएगी, चेंज कम हो जाएगी, है ना। हमने स्टार्ट किया था 1200 एंड मैक्सिमम ब्रेकिंग पे इट्स 1150। तो सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस रिजेक्शन होती है क्लोज लूप विद फॉरवर्ड गेन ऑफ हायर गेन्स में डिस्टर्बेंस ज्यादा रिजेक्ट होती है। ठीक है, आज के एक्सपेरिमेंट समझ में आया? हमने 3 एक्सपेरिमेंट्स किए बेसिकली। फर्स्ट वाज मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें हमने KM एंड KT प्लॉट किया। पहले प्लॉट में दिस वन सिमिलर टू दिस प्लॉट आएगा, इट्स राइजिंग लीनियर। मोटर में जितना हम एक्साइटेशन दे रहे हैं स्पीड इज इंक्रीजिंग, देन स्पीड इज सैचुरेटिंग, एक्सपेक्टेड है। दिस इज जैसे सर ने कहा जैसे सेंसर प्लॉट टेको जनरेटर। आप जितना इसमें स्पीड बढ़ा रहे हो, मैं जितना वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, स्पीड बढ़ा रहा हूँ, हाउ मच इज माई वोल्टेज फ्रॉम द टेको जनरेटर कमिंग आउट। मैंने कहा टेको जनरेटर प्रोवाइडिंग अ वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, सो ये लीनियरली इंक्रीज होके इट विल आल्सो सैचुरेट, है। सो सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमने क्लोज लूप देखा, दिस वाज ओपन लूप। क्लोज लूप में हमने देखा इफेक्ट ऑफ KA एंड फ्रॉम KA इंक्रीजेस एरर गोज डाउन, both theoretical as well as experimental. And the last experiment was effect of braking. तो उसमें हमने देखा कि ओपन लूप में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस आती है और क्लोज लूप में डिस्टर्बेंस ज़्यादा रिजेक्ट होती है, एंड उसमें भी जब गेन ज़्यादा होता है। सो दैट वाज स्पीड कंट्रोल। कोई क्वेश्चन इसमें? एनी क्वेश्चन इन दिस?